चलिए let's start with sound chapter today. So you all are familiar with this term sound. ठीक है? So what is the sound actually? What is sound actually? Vibration of vibration produced. Vocal cords. Vibration. Okay. Anything else? Kind of sensation. Anything else? Continuous disturbance. Okay. हाँ जी बेटा. Any other method or way of expressing sound? वो तो characteristics हो गए ना. हाँ जी. Okay. So like other forms of energy, sound is also a form of energy. Okay. That is basically a form of energy that produces vibrations, that produces sensation, that is formed or that is produced due to disturbance of the waves or the disturbance of the particles. ठीक है? And due to all these things, due to these disturbance, due to these vibrations, we are able to hear it. Okay? So it is a form of energy that actually produces sensation that we can easily hear. Okay? पहले हमने sound discuss कर लिया आप. Okay? Now, do you think sound is important in our life? Yes. Why? Very good. So if we talk about its importance, communication. एक दूसरे से जो हम बात कर रहे हैं वो किसके कारण हो रही है? That is only possible due to sound. Okay? Talking जो आप एक दूसरे से करते हो, continuous communication. हाँ जी. और क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है साउंड की ना डेली लाइफ? बस हाँ, सायरन्स हो गए और हॉर्न्स, गॉन्ग्स, मेटल के गॉन्ग्स हैं. ठीक है? और बेल्स टाइप है जो लोग. हाँ जी. बेल्स, इलेक्ट्रिक बेल्स और दूसरी बेल्स में. और वेरी गुड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हाँ जी. और बेटा एनी अदर इम्पोर्टेंस? सो टॉकिंग वी नीड. ठीक है? कम्युनिकेशन होनी चाहिए. अगर मैं आपको सी इमेजिन you are seeing a movie and that is having no voice, so are you able to listen to anything? Are you able to understand anything? No. Okay, so if there is no sound and that means the communication is not there. Okay, तो आप कुछ कह रहे हो, अगर मुझे वो समझ में नहीं आएगा then how I am able to understand that? Okay, जब उसकी साउंड नहीं होगी, आवाज ही नहीं होगी, कोई वॉइस ही नहीं होगी, कोई वाइब्रेशंस ही नहीं प्रोड्यूस होंगी, then we are not able to listen to the conversations of each other. So that's why the sound is important. ठीक है? सायरन्स मेटल के जो होते हैं आपके. ठीक है? हॉर्न्स हैं व्हीकल्स में, तो एक तरह से जैसे सायरन्स हैं, ये हॉर्न्स हैं, ये आपको क्या बताते हैं? गाइडेंस है एक तरह से. ठीक है? अलर्ट करते हैं हमें, इंडिकेशन है, अलर्टनेस की इंडिकेशंस हैं ये. ठीक है? बेल्स है, स्कूल्स में फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं. फुटस्टेप्स, हम साउंड की बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस में. फुटस्टेप्स में कैसे इंपॉर्टेंस होगी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें मेन रोल किसका है? साउंड का.
ठीक है, and we will be discussing in detail about the musical instruments also in this chapter. Okay, so we are having a number of musical instruments. ठीक है, हाँ, we are able to speak, कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उसी के कारण. हाँ जी, सितार, गिटार, तबला, ठीक है, हारमोनियम, हाँ जी, वायलिन, गिटार. okay, so all these musical instruments, yes, in all these musical instruments the main role is played by the sound. Okay, so next write down vibration. Vibration, इसको, हाँ, we will be doing in detail about the vibrations. Vibration, हाँ जी, क्या होता है बेटा वाइब्रेशन? वाइब्रेट करता है. What that means? The body is vibrating. और फास्ट मूवमेंट. इसमें देखो रबर बैंड है. हाँ जी बेटा, हाँ, बैक एंड फोर्थ, to and fro, back and forth movement of the substances, movement of the things. ठीक है, that is called as vibration. So you can write down vibration. कुछ नहीं है, इसके पीछे देख, उसके पीछे इस पेज में देखो, वो देख रबर बैंड दिखा मुझे ग्लू के पास. So write down vibration is a back and forth movement of a body. Vibration is a back and forth movement of a body. Fourth, आगे पीछे, to and fro, back and forth. Motion of a body. Back and forth motion of a body. कोई बात नहीं, मूवमेंट मोशन एक ही बात है बेटा. जैसे आप यहाँ पर सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हो पेंडुलम की. ठीक है, पेंडुलम जो है वो कैसे मूव करता है? ठीक है, मीन फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम फिर मीन, ऐसे ही मूव करता है आगे पीछे. ठीक है, ये एक उसकी मीन पोजीशन हो जाती है, बाकी दोनों उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है. ठीक है, इन द सेम वे वाइब्रेशंस दे आर प्रोड्यूस्ड. सी आई एम होल्डिंग अ रबर बैंड. ठीक है, जब आप इसको लाइक दिस स्ट्रक करोगे, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. कैन यू सी? तो ये क्या है एक्चुअली? These are the vibrations. ये मूवमेंट हो रही है ना, इसकी ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना. कैन यू सी? इट इज मूविंग. ओके, यस. सो द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम यही फिनोमिना यूज करते हैं वाइब्रेशन का. दैट द थिंग्स दे वाइब्रेट. ओके, दे वाइब्रेट on their mean positions to their extreme positions like this. Okay, so you all have seen this phenomena also in the water. पानी में जब आप स्टोन फेंकते हो, what you observe? ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल से बनने शुरू हो जाते हैं. हाँ जी, ऐसे बनते हैं. This is what? These are the vibrations. ठीक है, जहां पर आपने स्टोन को फेंका वहां से वाइब्रेशंस जो हैं वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं. ओके, एंड दिस ट्रेवल्स, और ये क्या करती हैं? ट्रैवल करती है. तो दैट्स व्हाई क्या होता है, एक जगह जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो ट्रैवल कर करके आप तक पहुंचती है. ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कंडक्शन में बताया था 7th चैप्टर में कि जब आप मेटल के एक एंड को हीट कर रहे हो तो वो जो हीट है वो दूसरे एंड तक भी जा रही है. दैट मीन्स फॉर द कंडक्शन पर्पसेस वी नीड अ मीडियम. सो इन द सेम वे जो साउंड है वो एक सब्सटेंस से दूसरे एरिया तक, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आपको क्यों सुनाई देती है? बिकॉज दैट ऑल्सो ट्रेवल्स.
that also follow some path, that also follow some medium. Okay, so these are the disturbances of the waves. जैसे ईशान ने बोला disturbance of waves, तो यहाँ पर एक पॉइंट पे क्या ओरिजिनेट हुआ है, वेव्स ओरिजिनेट हुए हैं that are actually distributed, ठीक है, स्कैटर हुई हैं, और इस वे से आपको ये जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या है, दिखे. ओके, these vibrations they can also be studied with the help of tuning fork. ये मैं आपको कल दिखाऊंगी. ट्यूनिंग फॉक होता है ऐसे, एक यू शेप्ड फॉक होता है. इसको जब आप हिट करते हो विद सम सब्सटेंस, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. जैसे ये स्ट्रिंग वाइब्रेट हुई ना ऊपर नीचे, ऐसे ही इसके ये दोनों एंड्स जो हैं दे स्टार्ट वाइब्रेट. ठीक है, मैं आपको कल दिखाऊंगी. ओके, द वाइब्रेशंस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द ट्यूनिंग फॉक. ओके, तो ये सारी चीजों में जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल करती है, दिस इज ड्यू टू द वाइब्रेशन. कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो जो है आगे अपने आप को क्या करती हैं, डिस्टर्बेंस से, या ये डिस्टर्बेंस ऑफ वेव्स जो हैं वो आगे प्रोपगेट करती हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू लिसन टू द साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन. राइट, sound is produced by the vibrations of a vibrating body. Sound is always produced due to the vibrations of a vibrating body. Okay, due to the vibrations of a vibrating body. अच्छा, और आप कैसे कैसे वाइब्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो बेटा? वैसे नॉर्मल बताओ. वो तो गिटार स्ट्रिंग्स तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े हैं. सिंपल साउंड्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? ओके, ग्लास, आप थोड़ा सा ग्लास फिल्ड विद वाटर ले लो. ठीक है, व्हेन यू स्ट्राइक इट, व्हेन यू हिट इट दैट विद द स्पून, तो आपको साउंड प्रोड्यूस होती है. कोई भी यूटेंसिल है, सी if I am hitting any substance with the another thing, ठीक है, the sound is produced, right? और आप कैसे इसको स्टडी कर सकते हो? बॉल को हिट करना है. Okay, so there is one activity also, simple activity, jal tarang. Jal tarang. You will see the production or the vibrations in a different manner. आपने क्या लेना है? You have to take few glasses. Okay. तो जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 ले लिए हैं. ठीक है, यू कैन इंक्रीज द नंबर. अब मैंने इन सब में डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर जो है वो फिल करना है. पहले में थोड़ा सा ले लेते हैं, दूसरे में पानी इंक्रीज कर दिया, थर्ड में और थोड़ा बढ़ा दिया, फोर्थ में और इंक्रीज कर दिया है. When you are going to strike it with a spoon, you will see that the vibrations or the sound produced in each of the glasses, they will be different. ऐसे ही होगा ना? हाँ, आप इक्वल साइज के ले लो. ठीक है, so you will observe that the sound produced in each of the glass, it will be different. ठीक है, तो ये क्यों है? Because the number of vibrations that are actually producing, they are different. That depends on the water. ठीक है, तो जो भी आपकी साउंड वेव्स हैं या डिस्टर्बेंस जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, वो डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ वाटर पे. इसीलिए ये सारी जो है वो आपको क्या दे रही हैं, डिफरेंट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करके डिफरेंट साउंड देंगी. ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एक्टिविटी. यू कैन ऑल्सो डू दैट एक्टिविटी एट योर होम. अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा आपने देखा होगा कुछ पीपल जो हैं दे कंसिडर मटकास, ठीक है, एज द इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स.
ठीक है, तो ऐसे भी जो है, क्योंकि दे प्रोड्यूस डिफरेंट और वेराइटी ऑफ साउंड्स आर देयर फ्रॉम द वेराइटी ऑफ द थिंग्स। जैसे मैं डिफरेंट थिंग्स को हिट कर रही हूँ, तो दे आर गिविंग मी डिफरेंट साउंड। ठीक है, तो कुछ साउंड्स जो है वो प्लीजेंट होती हैं, दैट वी कैन यूज एज एन आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। okay, so these sounds we can actually, or these instruments we can use for producing different pleasant music. ठीक है, pleasant music में ये use हो सकती हैं। now next write down musical instruments। वो एक्टिविटी है, मैंने आपको बता दी है, ठीक है, जल तरंग की। सो आप ये करके देख लेना घर पे एक बारी, ठीक है। Next, write down musical instruments. The category of musical instruments is, write down सबसे पहले लिखिए stringed instruments। क्या हो गया है? The first category is stringed instruments. Guitar, violin. So here the vibrations, they are produced by the vibrating of what? ठीक है, यहाँ पर जो vibrations आएंगी, they are produced due to the vibrating string। जो string लगी होगी, जब आप उसको vibrate करोगे, only then, okay, the sound will be produced। Now give me the number of examples। You can write down guitar, sitar, violin, एक तार, वीणा, okay, so there is string is generally a metal wire। जो इनकी स्ट्रिंग होती है वो मेटल की एक वायर होती है, जिसको जब आप क्या करते हो, वाइब्रेट करते हो, जैसे मैंने अभी आपको रबर बैंड की वाइब्रेशन दिखाई, वैसे ही जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन। ओके, और अगर आपने, इफ यू हैव सीन सितार और गिटार, जो उनका लोअर पार्ट होता है, जो वुडन से बना होता है, वो कैसा होता है? हॉलो, दैट इज हॉलो फ्रॉम द इनसाइड। ओके, सो दैट द एयर इट कैन पास थ्रू इजीली, और वो जो वाइब्रेशंस हैं वो प्रोड्यूस हो सके। ओके, सो यू कैन राइट डाउन, दे हैव हॉलो एयर चैम्बर्स। हाँ जी बेटा, इसमें जिनका लोअर पार्ट होता है वो हॉलो होता है ना, खाली होता है, हॉलो एयर चैम्बर्स have hollow air chambers that actually increase the loudness of the sound। अच्छा, एक सपोज यू आर इन अ रूम, एक रूम बिल्कुल खाली है, वहां पे कोई चीज नहीं पड़ी हुई, और एक रूम में हो आप जहां पर इट इज स्पेशियस, ठीक है, ऑक्यूपाइड है सारा, किसमें साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होगा? तो सेम यहाँ पे है, ठीक है, तो क्योंकि इसमें एयर ज्यादा होगी और जो रूम खाली है उसमें भी एयर ज्यादा होगी, तो जो खाली रूम है उसमें जो लाउडनेस है साउंड की वो ज्यादा होती है। इन द सेम वे, अगर ये आपका चैम्बर हॉलो होगा, दैट मींस इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर लाउडनेस ऑफ द साउंड। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन द सेकंड वन, विंड इंस्ट्रूमेंट्स। Next is wind instruments। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे वाइब्रेटिंग बॉडी कौन सी है?
एयर कॉलम, अगर आपने फ्लूइड देखी है उसमें उन्होंने एयर के लिए क्या रखी होती हैं, स्पेसेस रखे होते हैं ना. देयर आर एयर कॉलम ड्यू टू विच द साउंड्स और द वाइब्रेशंस दे आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, सो यू कैन राइट डाउन. दे आर जनरली मेड इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होते हैं, पाइप्स की फॉर्म में होते हैं, पाइप टाइप होते हैं ना ये. दे आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ पाइप्स एंड व्हेन यू ब्लो एयर, when you blow the air, the column of air inside this vibrates. तो इसमें जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो कौन सी है, जैसे इसमें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग थी, इसमें the air column in it starts vibrating. इसमें वाइब्रेटिंग बॉडी कौन सी है, एयर कॉलम. ओके, नाउ यू कैन गिव योर एग्जांपल्स. वो तो हिलता है हवा से. यू कैन राइट डाउन फ्लूइड, शहनाई, ट्रम्पेट. ओके, वो आगे करेंगे. सेक्सोफोन नहीं है, दैट इज इन द रीड इंस्ट्रूमेंट. हारमोनियम एंड सेक्सोफोन दे आर इन द रीड इंस्ट्रूमेंट. हाँ जी, हो गया बेटा. फ्लूट, फ्लूट, शहनाई, ट्रम्पेट, शहनाई, ट्रम्पेट. हो गया. वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, उसकी मेम्ब्रेन को आप स्ट्रेच करते हो, फिर वो प्रोड्यूस. SHEHNAI. हाँ जी, डन बेटा. नाउ राइट डाउन द थर्ड टाइप जो मैंने अभी बताई है, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स. जो भी हरमन ने पूछी थी मेरे से, percussion instruments. Now in these instruments there is a vibrating skin जिसको जब आप हिट करते हो then the sounds are produced. tabla. Simplest example is tabla. ठीक है, so here the vibrating body is skin. ठीक है, you can write down vibrating skin or membrane. That is vibrating skin, membrane. तबले के ऊपर एक उन्होंने लेयर लगाई होती है ना, that is a membrane. ठीक है, हाँ. डोल लिखो. ड्रम किसमें, रीड इंस्ट्रूमेंट्स. ड्रम, तबला, ढोलक, हाँ ढोलकी, मृदंगम कहते हैं उसको. ढोलकी कह लो या मृदंगम. ओके, ढोलकी और मृदंगम. ढोलकी, ढोलकी नहीं बजाते हो आप. इज दैट क्लियर? चलिए, राइट डाउन द लास्ट वन. ईशान एंड माधव लिख ले वैसे सबका. Next, write down beta. Write down the last category. Reed instruments. Reed. These instruments they contain मेटल रीड्स. आपने देखा होगा हारमोनियम को अगर आप खोल के देखते हो पीछे से मेटल की रीड्स लगी होती हैं, तो वो रीड्स के कारण जो है वो मूवमेंट होती है या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं. मेटल रीड्स which produce sound when air is blown through them. Which produce sound when air is blown through them.
देखो बेटा, एनीथिंग इट विल प्रोड्यूस साउंड व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो अगर मैं इसकी बात करूंगी, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कह लो या स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कह लो, ठीक है, क्योंकि जब वो स्ट्रेच्ड होगी, ठीक है, तभी वो जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। हाँ, वो तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सा पार्ट जो है उसका मेन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग है, जब आप उस स्ट्रिंग को, अब देखो मेरे पास ये रबर बैंड था, as it is not producing any sound. When I have stretched it, only then it is producing sound. ठीक है, waves produce हो रही हैं इसमें, vibrations produce हो रही हैं। तो ऐसे ही आपने सिंपल नहीं लिखना है कि string instruments में string जो है उसके कारण produce हो रही है। You have to write the word vibrating string or stretched string. Only when the substance is stretched, then only the sounds will be produced. इसमें हॉलो एयर कॉलम्स, ठीक है, एयर कॉलम्स आ जाएंगे आपके विंड इंस्ट्रूमेंट्स में। इसमें आपके स्ट्रेच्ड स्किन और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन। ओके, रीड इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रेच्ड मेटल रीड्स, स्ट्रेच्ड होंगी, ठीक है, स्ट्रेच्ड मेटल रीड्स। नवे स्टैंड अप। पियानो बोल रही अभी, पियानो, हारमोनियम, सैक्सोफोन, ठीक है, हाँ, ये सारी इसकी एग्जांपल्स है। तबला में वाइब्रेटिंग पार्ट्स बताओ। ट्रम्पेट मैंने विंड में बताया, शहनाई, फ्लूइड एंड ट्रम्पेट, वो सारे इसी में ही आ जाएंगे। माउथ ऑर्गन्स भी जो है वो इसी में ही आ जाती हैं। ओके, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम, दे ऑल आर इन द रीड इंस्ट्रूमेंट्स। एक you mostly have seen in the temples, एक साथ साथ में वो ऐसे कोलाइड करने वाली चीजें आती है ना, मंजीरा, that are called as मंजीरा, ठीक है, they also